Keep quiet, everybody keep quiet. Keeping quiet, this is the name of our poem. And class 12th NCERT book, we are going to learn the poem which is given in the Flamingo book. And in this video, we are going to learn its solved extracts as well as NCERT and board question answers. So if you would like to watch its previous video, for this one you have to go to the channel and you can watch the video, because it's prior video also made on this one. Word to word explanation as well as literary figures are given there. With the literary figures, in which line which literary figure is given, that is given in that video. So you may go there and watch that. And if you would like to watch my rest of the videos, you may subscribe the channel, go to the playlist and watch your desirous video related to writing section, grammar and your any of the book there. So let's come there. The very first we are going to learn its question answers which are given in the book. NCERT question answers. What will count up to 12 keeping still help us achieve? What will counting up to 12? What will up to counting 12 and keeping still help us achieve? So what do you mean by this? What will counting up to 12? क्या काउंट करना है, क्यों काउंट करना है? कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव, और अगर हम ऐसे कीप क्वाइट रहते तो हमें इससे क्या हासिल होगा? If we count up to 12 and keep still, it will give us some time to analyze our deeds. So why the poet is saying in this poem that we should keep quiet? He is saying so that we can get the time to analyze our deeds, our work, our task, whatever we are doing in the life. It will allow us for some moments to think about the result of our activities. Means to say, the poet wants to say that if you will keep quiet, if you will stop your all kind of working, then you will be having the time to analyze your deeds, to analyze your work, whatever you are doing in your life. And it will allow us some moment, some time, so that you will just think about the result of your activities, that whatever activities done by you, is that beneficial, or it will be very harmful for someone else. The poet just want to say to you that you should have a time there to think about the world, to think about the environment, that your activities are damaging the environment or you are protecting the environment. What kind of act are you doing there? मीन्स इस पोएम में पोइट जो है हमें यही रियलाइज करवाना चाहते हैं कि देखो, आप अगर कुछ टाइम के लिए आप कीप क्वाइट मीन्स बिल्कुल चुप हो जाते, बिल्कुल शांत हो जाते, कोई एक्टिविटी नहीं करते, नो मूवमेंट ऑफ हैंड्स, नो मूवमेंट ऑफ आर्म्स, कोई भी मूवमेंट आप नहीं करते, देन यू विल गेट द इनफ टाइम टू थिंक अबाउट योर डीड्स. तो आपको जो इनफ टाइम मिल जाएगा अपने डीड्स को, अपने टास्क को, जो भी काम आप करते हो उसके बारे में सोचने के लिए कि जो भी आप कर रहे हो, इज दैट राइट, क्या वो सही है? और अगर सही है, दैट्स ओके, कैरी ऑन द सेम पाथ, आप उसी काम पे लगे रहिए. बट इफ यू थिंक नो, व्हाटएवर यू आर डूइंग दैट विल डैमेज द एनवायरनमेंट, that will harm the world, then you should just stop the activity and change your path. And unfortunately this is taking all of us toward our own end. और अगर हम कोई भी इनएक्टिविटी करते हैं तो वो हमें हमारे एंड की तरफ लेके जाते हैं. सो वी नीड टू थिंक इन ऑर्डर टू अचीव पीस एंड हार्मनी, और इसलिए हमें जो पीस एंड हार्मनी के बारे में यहाँ पे सोचना चाहिए. सो मीन्स टू से द पोएट इज कन्वेइंग द मेन मैसेज हियर, दैट इज पीस एंड हार्मनी. Next, do you think the poet advocates total inactivity and death? What do you think about the poet? कि पोइट किस चीज को फेवर कर रहा है, किस तरह की, मतलब डिस एक्टिविटीज को कर रहे हैं, इनएक्टिविटीज को कर रहे हैं, या फिर मतलब प्रॉपर थिंग्स को वो एडवोकेट कर रहा है, फेवर कर रहा है. एंड डेथ, और डेथ के बारे में सो क्या बताना चाहता है यहाँ पे पोइट? व्हाट इज द थिंकिंग ऑफ द पोइट अबाउट द सेम थिंग? नो, द पोइट डजंट एडवोकेट. जो पोइट वो एडवोकेट नहीं करता, वो फेवर नहीं कर रहा किस चीज को? टोटल जो इनएक्टिविटीज है, एक्टिविटीज होती है जो एक्टिविटीज डेली रूटीन में जो गुड थिंग के लिए होती है, इनएक्टिविटीज जो मतलब गलत होती है उनके लिए, तो उन चीजों को वो मतलब मोटिवेट करना चाहता है कि आपको अच्छे काम करने चाहिए, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब वो बुरी चीजों की तरफ आपको नहीं लेके जाता. तो यहाँ पे कहने का मीन्स कि जो पोइट है वो नहीं करता फेवर, किसको नहीं कर रहा कि भाई इनएक्टिविटी हो और डेथ हो, इसको फेवर नहीं करता. वो सिर्फ क्लैरिफाई कर रहा है इस पोएम के अंदर दैट ही वांट्स ऑल द पीपल टू जस्ट स्टॉप फॉर अ व्हाइल. वो ये चाहता है कि हर कोई, मतलब पूरे वर्ल्ड में हर कोई सिर्फ एक मोमेंट के लिए, एक पल के लिए रुक जाए और वो एनालाइज करे अपनी एक्टिविटीज को कि जो भी वो कर रहा है क्या वो सही है,
क्या वो बिल्कुल अकॉर्डिंग से उनके इसके अकॉर्डिंग ही है या कुछ अलग कर रहा है? अगर उसको लगता है कि हाँ वो हार्म पहुंचा रहा है किसको, एनवायरमेंट को, वर्ल्ड को, देन ही शुड स्टॉप हिज ऑल काइंड ऑफ एक्टिविटीज एंड ही शुड चेंज हिज पाथ. सो ही वांट्स ह्यूमन बीइंग्स नॉट टू सपोर्ट वॉर. वो ये चाहता है कि जो ह्यूमन बीइंग, जो लोग वॉर को जो वो फेवर करते हैं, ऐसे लोगों को रुक जाना चाहिए. जो डैमेज करते हैं एनवायरमेंट को, ऐसे लोगों को रुक जाना चाहिए. मीन्स टू से poet wants peace and harmony in the world. Clearly this is mentioned there. The next third question is the what is the sadness that the poet refers to in the poem. भाई वो sadness word का meaning क्या है poem के अंदर, जो poet ने कहा यहाँ पे the sadness is the result of our own action. अब जो भी sadness होती है, जो भी अगर हम upset हैं, हम हमारे अंदर sadness है, हम अगर दुखी हैं, ठीक है, हम उदास हैं, तो ये सब किस वजह से होता है? ये हमारे अपने ही actions, हमारे अपने कर्मों की वजह से होता है. क्यों? Because according to the poet we all are in a hurry of achieving various tasks in our life. क्योंकि हम हर कोई क्या है, हमारी लाइफ में भागदौड़ करने में लगे पड़े हैं, ठीक है, और हम अचीव करना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, और इसी वजह से हमारे अंदर सैडनेस आती है. हम ये नहीं सोच पाते कि जो भी हम कर रहे हैं क्या वो सही है या गलत है. दिस रश समटाइम्स प्रूव्स डेंजरस फॉर अस. और जो हम काम करते रहते हैं, भागदौड़ करते रहते हैं, हम ये देखते नहीं, सोचते नहीं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है. इट प्रूव्स डेंजरस for us as we don't analyze our actions. क्योंकि हम अपने actions को analyze ही नहीं करते कि जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है. So we land ourselves in a number of problems. और इसीलिए हम numbers of problem में हम जो है numbers of problems के अंदर क्या फंस जाते हैं. These problems then often become a reason of our sadness. और यही वो problems हैं. These are the problems, these are the reasons which are the reason of our sadness. I mean, these problems are the reason of our sadness according to the poet. The next question, what symbol from nature does the poet invoke? What symbol, भाई कौन सा सिंबल नेचर से पोइट ने लिया यहाँ पे क्या बताने के लिए? दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपार्ट स्टिलनेस. जो पोइट है वो ये क्यों कहता है कि मतलब एक चीज के अंदर अभी भी स्टिलनेस, मतलब अब भी लाइफ है. कहाँ पर? अंडर अप्रेंट. अंडर अप्रेंट मतलब बिल्कुल सोइल के नीचे भी अभी भी, मतलब जैसे क्या है कि स्टिलनेस है अभी भी, मतलब स्टिलनेस अभी भी फिक्स्ड है, अभी भी उसमें कोई चेंज नहीं. तो ऐसा क्यों बोलते? उसने नेचर की चीज से किससे क्या एग्जांपल लिया यहाँ पे? उसने बोला ना लास्ट स्टेंजा में अर्थ को लेकर के उसने एक स्टेंजा बनाया, अर्थ से लेकर के. The poet takes an example of earth. अब यहाँ पर अर्थ से रिलेटेड उसने एग्जांपल लिया है और वो ये प्रूव करना चाहता है that there can be life under apparent stillness. कि अगर स्टिलनेस है, मतलब देखो जैसे हमारी जो अर्थ है उसकी अपर लेयर पर अगर मान लो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हमें बिल्कुल क्लीन दिखाई देती है, बट आफ्टर सम टाइम जो उसके ऊपर क्या है, कुछ सीड्स के जो वो प्लांट्स के थोड़े से हमें सिंबल दिखाई देने लगते हैं. सो मीन्स टू से कि जिस चीज को हम क्या मानते हैं, लाइफलेस मानते हैं, सम टाइम के बाद उसके अंदर भी लाइफ आ जाते हैं. मीन्स कहने का कहीं ना कहीं हिडन हमारी लाइफ छुपी हुई है यहाँ पे. सो द अर्थ नेवर गेट्स इनएक्टिव. जो अर्थ कभी इनएक्टिव होती नहीं है, मतलब दिखाई देती है. जैसे कुछ टाइम के लिए हमारी जो सॉइल होती है, वो जमीन होती है, जैसे फार्मर है हमारे क्या करते हैं, सीड्स डाल देते हैं फील्ड के अंदर, लेकिन सीड डालने के बाद जस्ट बाद उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, 3-4 डेज के बाद ही थोड़े छोटे 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 अंकुर उसमें दिखाई देने लगते हैं. सो मीन्स टू से कि जो वो 3-4 डेज पहले उसके अंदर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, स्टिलनेस थी, बिल्कुल स्टिल था, कुछ भी नहीं था, स्थिरता थी उसके अंदर, लेकिन बाद में बट आफ्टर सम टाइम some leaves, some symbols were seen in the field. तो ऐसे ही यहाँ पर ये बताते हैं कि हमारी भी लाइफ के अंदर जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्टिविटी मिलती है. और अर्थ का एग्जांपल लेके वो यहाँ पर बता रहे हैं कि जो अर्थ है वो इनएक्टिव कभी नहीं होती, वो हमेशा ही एक्टिव रहती है. We experience the change of the season which brings so many different things with it. और हम जो यहाँ पर चेंज देखते हैं, जो सीजन, जो भी सीजन्स के अकॉर्डिंग जो भी चेंज होते हैं, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग जो बहुत सी डिफरेंट चीजें देखने में आती हैं. इन विंटर, जैसे विंटर में अलग से सीजन देखने में आता है, अलग से क्रॉप्स दिखाई देंगी, अलग से हमारी जो है वो एनवायरमेंट होगा, अलग से हमारे आसपास की सराउंडिंग होगी. और स्प्रिंग सीजन में भी ऐसे ही होता है, ठीक है. तो सारे सीजन्स के अकॉर्डिंग जो है सारे चेंज होते हैं. जैसे विंटर में क्या, थिंग्स कम टू द स्टैंड स्टिल एज द वाटर बॉडीज फ्रीज. क्योंकि वाटर बॉडीज जहां पर जो भी वाटर के सोर्स होते हैं वो सारे फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, तो एकदम से स्टिलनेस हमें दिखाई देती है. द ट्रीज शेड their leaves
एक्सेट्रा। और जो ट्रीज हैं उनकी जो लीव्स है उनको लेकर भी क्या है कि शेड, मतलब एक तरह से शेड बन जाते हैं यहाँ पे। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे स्प्रिंग सीजन आता है, इट ब्रिंग्स विद इट्स लवली फ्लावर्स, इसके जो ट्रीज है उनके अंदर लवली फ्लावर्स आ जाते हैं। ओके, और फॉलोइंग रिवर्स, जो रिवर्स है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देती है, एक न्यू लाइफ इनके अंदर आ जाती है नेचर के अंदर। मीन्स टू से कि जैसे जैसे चेंज आता है सीजन के अंदर, वैसे वैसे ही जो है वो चीजों के अंदर भी चेंज आता दिखाई देता है। सो द पोइट वांट्स टू कन्वे दैट वी शुड स्टे काम, हमें जो हमेशा शांत रहना चाहिए, काम रहना चाहिए, बट दैट डजंट मीन दैट इट विल ब्रिंग टोटल इनएक्टिविटी एंड स्टिलनेस। बट इसका ये मतलब नहीं कि हम कोई भी मतलब गलत काम करने लगे, या फिर हम अंदर, हमारे अंदर जो है हम फिक्स्ड हो जाए बिल्कुल, उसके अंदर चेंज ही ना लेके आए। Now the turn is of the extracts there, so extracts are given there, like now we can't to told यहाँ से लेके and up to not move our arms so much. So is on the basis of these this extract some questions are given. How long does the poet want to say still? भाई जो पोइट है वो क्या चाहता है कि लोगों को कितने टाइम तक स्टिल रहना चाहिए, कितने टाइम तक अनचेंज्ड रहना चाहिए, कितने टाइम तक लोगों को बिल्कुल फिक्स्ड रहना चाहिए। द पोइट वांट्स टू काउंट, पोइट कहते हैं ना कि मैं 12 तक काउंट करूंगा, आपको 12 तक जो है यहाँ पर क्या रहना है, बिल्कुल क्वाइट रहना है, हिलना नहीं है यहाँ से, ठीक है। तो 12 को यहाँ पर वो इंडिकेट कर रहे हैं। व्हाट डज द होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट? अगर हम कीप क्वाइट होते हैं, अगर हम क्वाइट हो जाते, चुप रह जाते हैं, अगर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करते, वी आर नॉट मूविंग आवर आर्म्स, वी आर नॉट यूजिंग आवर लेग्स देयर, वी आर नॉट even speaking any language, then what are we going to achieve? What are we going to achieve? By keeping quiet, the poet hopes that we will be able to live a fascinating, means attracting moment, and then realize the value of the calm reflection. तो हमें तभी जो है क्वाइटनेस की, हमें काम रहने की, शांत रहने की जो है हमें क्या है वैल्यू पता चलेगी। इंट्रोस्पेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन मीन्स टू इंस्पेक्ट योर ओन, अपने आप को देखना, अपने आप को इंस्पेक्ट करना, अपने आप को जांचना, चेक करना, दैट व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, आर यू डूइंग वेल, देन गुड, गो ऑन द सेम पाथ, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग गुड, that is harmful for the environment, that is harmful for the world, then stop your activity, change your path, and be a good human being. The next is, what does the poet mean by not move our arms so much? भी poet का कहने का क्या मतलब है कि not move our arms so much, कि अपनी arms को ज्यादा आप मतलब मत हिलाओ। So what the poet wants to say, whenever man has used his arm, जब भी man ने अपने arms का use किया है, तो वो कहीं ना कहीं cause बना है कुछ harm का, कहीं ना कहीं जो है वहां पे harm, कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज को उसने जो लॉस किया है, किसी न किसी चीज को उसने harm पहुंचाया, हानि पहुंचाई है। So the पोइट इसलिए कहता है कि अगर तुम अपने हैंड्स को यूज करते हो ना कोई तुम उल्टा काम ही करोगे, तो इससे बेटर तुम अपने हैंड्स को यूज करो ही मत। The next is given them that what does TP refer to on the basis of this extract। अब इस extract के बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। What does TP refer? TP का मीन्स कहने का क्या है, पर TP होता क्या है? TP refers to the movement of a silence। हम साइलेंस को, क्वाइटनेस को यहाँ पर TP बोल रहे। इट मीन्स होता है पीस और कामनेस, मतलब बिल्कुल शांत रहना, बिल्कुल काम हो जाना। विल प्रिवेल, मतलब जिसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल अचीव करना चाहते हैं, प्रिवेल करना चाहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, the poet is addressing who is the poet speaking to? अब ये who is मतलब किसको जो poet address कर रहा है, यहाँ पर किसको बोल रहा है? The poet is addressing mankind, यहाँ पर mankind को बताना चाहता है, यहाँ पर mankind को यहाँ पर वो बोल रहा है who has no time, वो ऐसे लोगों को बोल रहे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, जो अपने बारे में सोच नहीं सकते, जो ये नहीं सोच रहे कि अपनी लाइफ में वो कर क्या रहे, वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। इन इट्स ओवर हैक्टिक, मतलब जो हैक्टिक हो गया उनकी लाइफ, बहुत बिजी लाइफ अपनी बताते हैं, तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए रुको, सोचो, देखो कर क्या रहे हो, सही कर रहे हो दैट्स गुड, तो चलते रहो, अगर नहीं सही कर रहे देन स्टॉप एंड चेंज योर पाथ। नेक्स्ट, व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक? व्हाट वुड बी द मोमेंट लाइक? मोमेंट कैसा होगा यहाँ पर? द मोमेंट वुड बी एक्सोटिक, भी बहुत स्पेशल, एक्सोटिक मींस वेरी स्पेशल, तो जो मोमेंट है, ये जो पल होगा बहुत ही स्पेशल हो जाएगा एंड अनयूजुअल भी हो जाएगा। क्यों? अगर पूरे वर्ल्ड में आपको लगता है कि पूरे वर्ल्ड में क्या है कि हर कोई बिल्कुल क्वाइट हो गया, शांत हो गया, तो क्या होगा, बिल्कुल जो है सारी चीजें बिल्कुल स्ट्रेंज सी हो जाएंगी, बिल्कुल एक्सोटिक हो जाएगा, बहुत स्पेशल मोमेंट हो जाएगा अगर कहीं पे कोई भी हलचल ना हो। यू कैन थिंक, आप सोच सकते हैं कि हर कोई बिल्कुल स्टॉप हो जाए, बिल्कुल स्टैचू बन जाए, मतलब कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, बिल्कुल अनयूजुअल लगेगा, जो कि बिल्कुल नॉर्मल नहीं लगेगा एंड इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द मैनकाइंड, और ये मैनकाइंड के लिए न्यू एक्सपीरियंस हो जाएगा। द नेक्स्ट इज गिवन द
What does the poet want us to keep quiet? भाई poet क्यों चाहता हम keep quiet हो जाए? Because this moment of quietness will give us the time to meditate and introspect. क्योंकि ये जो time है जब हम बिल्कुल शांत हो जाएंगे, बिल्कुल कुछ भी नहीं करेंगे, तो ये जो time हमें मिलेगा ना, इस time में हम अपने आप को देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ओके, इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को जान सकते हैं, कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं अपने आप को कि क्या कर रहे हैं हम, जो करे सही करे, नहीं कर रहे वो मैनकाइंड के लिए, मानवता के लिए सही है नहीं है, अगर सही है तो कैरी ऑन, अदरवाइज स्टॉप दैट. द नेक्स्ट इज व्हाट डज द पोइट, what does he want us to do for 1 second? 1 second के लिए वो क्या चाहता है हम क्या करें? वो ये चाहता है ना भी कि हम बिल्कुल कीपिंग क्वाइट हो जाए. सो द पोइट वांट्स अस टू डू नथिंग, कुछ भी ना करें, एंड रिमेन इनएक्टिव, बिल्कुल इनएक्टिव हो जाए. इनएक्टिव मींस कोई भी एक्टिविटी ना करे, कोई भी हरकत ना करे 1 second के लिए. what does he mean by not move our arms? अपनी आर्म्स को ना हिलाने का मतलब क्या है उनका? मतलब कहने का क्या है कि नॉट मूव आर्म्स का मतलब क्या होता है कि नो फिजिकल एक्टिविटी. भाई फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी नहीं होनी चाहिए, एंड इट शुड बी कैरिड आउट फॉर 1 second. भाई 1 second के लिए पूरे वर्ल्ड में हर कोई अपनी फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल बंद कर दो, और उसके बाद क्या होगा? जो डिस्ट्रॉय, जो हम किलिंग करते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं दूसरों के लिए, जो हम किसी को हार्म पहुंचाते हैं, तो वो सारा स्टॉप हो जाएगा, और सिर्फ 1 second में ही बहुत ज्यादा चेंज आ जाएगा. राइट. द नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट व्हाट, और ये एक्सट्रैक्ट ना बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार. perhaps the earth can teach us. This is very important there many times, and you can say every time in one paper code it will be there. So what does the earth teaches? और ये भी लाइन बहुत ज्यादा important. This is very important. What does the earth teaches? earth हमें क्या सिखाती है? It can be in separately 2 marks question, otherwise in the form of extract will also come. So the earth teaches how to nurture life. लाइफ को कैसे नर्चर करना है अंडर अपरेंट क्वाइटनेस. मतलब देखो कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो अर्थ है वो हमें क्या सिखाते हैं कि वो बिल्कुल क्वाइट होके कैसे चीजों को नर्चर करते हैं, कैसे चीजों का पालन पोषण करती है, कैसे चीजों को बड़ा करती है क्वाइट होकर, वो कोई हार्म नहीं पहुंचाती हमें. ठीक है, जो हार्म है वो भी हम, वो सारी चीजों को ना साइलेंटली करती है. जो अर्थ है सारे काम को साइलेंटली करती है, वो कोई भी मतलब बोल के कुछ नहीं करती है. तो जो करिए साइलेंटली करती है, साइलेंट करने की वजह से वो जो सारा काम होता है बिल्कुल सही रूटीन में वो करती है, और वो कोई भी हार्म हमारे लिए नहीं पहुंचाती जैसे हम उसके लिए करते हैं. सो इट द इम्पोर्टेंस ऑफ समटाइम टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम ऑल एक्टिविटी. तो ये हमें ये सिखाते हैं कि हमें कभी कभी अपनी सारी चीजों से ब्रेक लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं. So this is very important answer. What does the poet mean to achieve by counting up to 12? काउंटिंग अप टू 12 काउंट करने से वो क्या अचीव करना चाहता है? यहाँ पे वो क्या करना चाहता है? अटेम्प्ट और रिमेन काम एंड स्टिल. वो काम और स्टिल होना चाहता है यहाँ पर, बिल्कुल शांत और बिल्कुल स्टिल फिक्स्ड होना चाहता है यहाँ पर. ही वांट्स, वो चाहता है कि जो मैनकाइंड है वो रियलाइज करे कि वो कर क्या रही है. फ्यूटिलिटी मतलब कोई भी चीज को वो यूटिलाइज कर रही है नहीं कर रही हैं. माइंडलेस वर्ड्स, जो वर्ड्स जो ऐसे बोल देते किसी को मतलब पिंच हो जाते, ऐसे वर्ड्स पे वो एक्शन ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, उनको मतलब चेंज करे नहीं करे, क्या एक्शन करे, क्या एनकरेज करे पीपल को, मतलब इंट्रोस्पेक्ट करे अपने आप को और अपनी गुड चीजों को आगे लेकर के आए. What is the significance of keeping quiet? Keeping quiet का significance क्या भाई, क्या importance है keeping quiet कहने की? So the by keeping quiet and calm man will realize his voice. जो मैन है वो अपने डूइंग्स को, अपनी डीड्स को, अपने वर्क को, अपने टास्क को क्या वो यहाँ पर रियलाइज करेगा, और जो हार्मफुल डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज वो कर रहा है वो उनसे बच सकता है. एंड नाउ देयर इज some more extract there, and on the basis of this extract again some questions are there. What can earth teach us? earth क्या सिखाती है हमें? Again earth is teaching us to introspect there. How can we achieve the state of seems dead? seems dead का मतलब क्या होता है, हम इसमें कैसे क्या अचीव करते हैं? The state of seems dead symbolize the doomsday when all life of earth will come to an end. मतलब seems dead का मतलब कि ऐसा, seems मतलब look like, ऐसे दिखाई देना. कैसे दिखाई देना? डेड की तरह दिखाई देना. मीन्स कभी कभी जो लाइफ है वो ऐसे दिखाई देती है कि बिल्कुल एंड हो चुके, बट आफ्टर सम टाइम, लेकिन कुछ टाइम के बाद वहां पर हमें लाइफ दिखाई देती है. जैसे कि इसने अर्थ का एग्जांपल लेके बताया था कि सीड्स जो होते हैं वो अर्थ की जो सोइल होते हैं उसके अंदर होते हैं, बट हम क्या कंसीडर करते हैं कि नहीं यहाँ पर कुछ भी नहीं है. ठीक है, so somewhere sometime the life will be hidden there. Given an example how seeming to be dead things become alive. कैसे जो वो dead things alive हो जाते हैं, कैसे उनके अंदर लाइफ आ जाती है, कैसे आ जाती है? न्यू लाइफ emerges from the dead
रिमेन लाइक अ सीड, मतलब देखो जैसे कि लाइफ होती है, एक नई लाइफ कैसे आती है, जैसे कि एक सीड के अंदर से आते हैं, और सीड गिव्स लाइफ टू अ न्यू प्लांट। जैसे एक सीड होता है वो एकदम से प्लांट को बर्थ नहीं देता, एकदम से प्लांट को वो शो नहीं करता, वो अपीयर नहीं करता, तो जो ग्रो नहीं करता, जो सीड जो वो धीरे 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 सीड, पहले सीड जो है वो अर्थ के अंदर होता है, अर्थ के अंदर सीड को डालते हैं, वो सीड फूट जाता है, फूटने के बाद उसके अंदर से अंकुर फूटने लगते हैं, तो 3-4 दिन के बाद जो 5-6 दिन के बाद जैसे भी होता है, वो डिपेंड करता है सीड के ऊपर किस चीज का सीड है, उसके बाद वो एक नई लाइफ सामने लेके आता है, एक छोटा सा हल्का सा प्लांट आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर पॉइंट यही कहता है कि जहां पर हम ये सोचते हैं कि कोई भी लाइफ नहीं है, लेकिन वहां पर लाइफ होती है, एवरीथिंग इज नॉट डेड, जो सीम्स डेड, जो दिखाई देता है कि हाँ डेड है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसके अंदर क्या होता है, एक लाइफ नजर आने लग जाती है। And the next there some board exams questions are given there. So the very first question, which is exotic moment that the poet refers to in keeping quiet? भाई क्या exotic moment है यहाँ पर, क्या special moment है यहाँ पर, कौन सा special moment है कि पैब्लो नेरूडा वो यही कहते हैं यहाँ पर, wish करते हैं एक special moment की कि mankind जो वो free होगा और वो क्या करेगा, अपने लालच से free होगा, अपनी cruelty के ऊपर देखेगा कि क्या cruel चीजें, क्या मतलब किसी के ऊपर मतलब cruel, किसी के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, किसी को harm पहुंचा रहे हैं, तो अपने उन एक्शन को देखेगा, सोचेगा और उनको रोक देगा। अननेसेसरी जो भी वो रश कर रहा है, जो भागदौड़ कर रहे हैं, जो नॉइस है, वो सारी चीजें रुक जाएंगी, जो अनप्लेजेंट थिंग्स है वो रुक जाएंगी, जो ट्रबल्स है उनकी प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा। सो द पॉइंट जो विश करता है कि जो नॉइस है इंजन्स की, मशीन्स की, वो भी यहाँ पर क्या है वो रुक जाएंगी, और वहां पर क्या होगा कि पीस और हार्मनी यहाँ पर क्या होगी, हमारे सामने आएगी। नेक्स्ट, हाउ अकॉर्डिंग टू पेब्लो नेरूदा कैन कीपिंग क्वाइट चेंज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ? लाइफ का एटीट्यूड कैसे चेंज कर सकते हैं? देखो भाई, अगर हम कुछ टाइम के लिए कीप क्वाइट हो जाते तो ऑब्वियसली क्या होगा, हम अपने बारे में सोच पाएंगे, और अगर हम अपने बारे में सोच पाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कर क्या रहे हैं, what we are doing something wrong or right, and if we will realize our things that we are doing some wrong, then we will change our path and it will enhance the matter of brotherhood। तो ब्रदरहुड की जो सेंस है उसको ये क्या करेगा, यहाँ पर सामने लेके आता है, ब्रदरहुड की सेंस हमारे सबके अंदर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। The next is there the second last question, which sadness is Pablo Neruda referring to? कौन सी सैडनेस को करता है? मैंने आपको पहले बताया कि सैडनेस कौन सी, यहाँ पर पॉइंट जो कीपिंग क्वाइट है उसमें वही कहते हैं कि अंडरस्टैंड कीजिए अपने आप को और नेचर को, और अगर आप सही कर रहे हो तो ठीक है, अगर सही नहीं कर रहे तो उसको आपको रोक देना है। और ये भी बताते हैं यहाँ पर कि ह्यूमन बींग्स इन अ फ्रेंजी ऑफ एक्टिविटीज हैव नो टाइम, उनके पास टाइम ही नहीं, वो ये बोलते हैं कि हमारे पास तो टाइम ही नहीं है इन एक्टिविटीज के लिए।